نمائندے شہزاد تابانی نے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ لاڑکانہ میں اس جلسے کے موقع پر مسلم لیگ نون کے جلسے کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ غوث علی شاہ، پرویز رشید اور اب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اس جلسے میں لاڑکانہ میں جو منعقد ہو رہا ہے اپنا خطاب شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو سرفراز جتوئی صاحب اور حمیر انر صاحب، قائدین کرام، لاڑکانہ کے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ لاڑکانہ میں میں جو آج دیکھ رہا ہوں، جو جذبہ دیکھ رہا ہوں، جو جوش و خروش دیکھ رہا ہوں، فیصلہ آباد میں بھی یہی جوش و خروش تھا، لاہور میں بھی یہی جوش و خروش تھا، اور لاڑکانہ بھی اسی طرح سوچتا ہے جیسے لاہور سوچتا ہے، فیصلہ آباد سوچتا ہے، کراچی سوچتا ہے اور پاکستان سوچتا ہے۔ لاڑکانے کی بھی وہی آواز ہے جو باقی پاکستان کی آواز ہے۔ یہ جوش و جذبہ، یہ رونق، آپ کے چہروں پہ یہ مسرت کے جذبات، یہ میرے لیے بہت حوصلے کی بات ہے۔ اور میں خاموش نہیں، ابھی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اور بالکل صحیح سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور پیچھے ہٹ جاؤ، آپ بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس لائن سے آگے نہ کوئی آئے۔ اور میں اللہ کے فضل سے صحیح سمجھتا ہوں کہ سندھ بدل رہا ہے، پاکستان بدل رہا ہے، لاڑکانہ بدل رہا ہے، اور لاڑکانہ کے عوام ماشاءاللہ اب ایک نئی سوچ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب میں یہ جوش و جذبہ یہاں پر دیکھتا ہوں، ذرا خاموش، جب میں یہاں جوش و جذبہ دیکھتا ہوں تو میرا دل غریب خدا بخش کی طرف بھی جاتا ہے۔ محترمہ وہاں دفن ہے، میری بہن محترمہ بینظیر بھٹو، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، وہ وہاں ہیں، لیکن آج تک ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے قاتل کون ہیں، اور آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے، اور وہ جن کی آج حکومت ہے وہ اس پارٹی کی چیئرپرسن تھی، پارٹی کی چیئرپرسن کا آج تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور آپ جانتے ہیں حکومت کا آج یہ حال اس لیے ہے، یہ دن اس لیے حکومت کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ آج حکومت کے وزیر ہیں جو محترمہ کی لاش پڑی ہوئی دیکھ کر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ آج حکومت کے وزیر اور مشیر ہیں یا نہیں ہیں؟ جو لوگ محترمہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھاگ جائیں، جو گاڑیوں میں بیٹھ کے بھاگ جائیں، کیا وہ پارٹی کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ وہ آج وزیر اور مشیر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نواز شریف، مجھے اسی وقت سنیں ذرا میری بات غور سے، مجھے یہ بیچ میں شور بند کریں۔ نواز شریف اسلام آباد میں تھا، محترمہ اسلام آباد میں تھی، محترمہ کو پتہ لگا، یہ اس دن کی بات کر رہا ہوں جب محترمہ شہید ہوئی ہیں،
मोहतरमा को पता लगा कि मेरे जुलूस पर फायरिंग हुई है और हमारे जुलूस में से चंद लोग शहीद हो गए। मोहतरमा ने फौरन मुझे टेलीफोन किया, फौरन फोन किया। नाहीद खान साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी, गालिबन उन्हीं के जरिए से उन्होंने मुझे फोन मिलाया। तो मैं, चूंकि वहां पे फायरिंग हुई थी, बहुत एक अजीब सा इस्तराब था, तो उस वक्त कॉल नहीं मिल सकी। उसके बाद मैंने कॉल किया उनको वापस। 1 घंटे के बाद मैंने कॉल किया तो मुझे बताया कि वो इस वक्त लियाकत बाग में जलसा कर रही हैं और जलसे से खिताब कर रही हैं। मैंने कहा जैसे जलसा खत्म हो उन्हें कहें कि वो फिर मुझे फोन कर लें। अभी जलसा खत्म होने का हमें इंतजार था और खबर आई कि उनके ऊपर वहां पे बम फटा है। जैसे मुझे खबर आई, जावेद हाशमी साहब मेरे साथ थे। जावेद हाशमी साहब उसी गाड़ी में बैठे हुए थे जिसमें मैं बैठा हुआ था और वहीं खबर आई हमें। और फिर हमने कहा बड़ा एक जलसा था, वहां पे जाना था। हमने कहा जलसा बलसा सब छोड़ो, मैं मोहतरमा को मिलने के लिए अस्पताल जाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़कर, जावेद हाशमी भी मेरे साथ थे, सब कुछ छोड़कर अस्पताल चले गए। अस्पताल गए, वहां काफी मजमा था। उन्होंने कहा कि मोहतरमा को ऊपर ले गए हैं। हम ऊपर भागे तो एक कमरे में नाहिद खान साहबा बैठी हुई थी। उसी कमरे में बैठे हुए थे बाकी भी पीपल्स पार्टी के लीडर। तो फिर उस दूसरे कमरे में हमें उन्होंने रोक दिया कि कोई नहीं जा सकता, डॉक्टर जो है वो वहां पे उनके पास है, लेकिन मोहतरमा जो है वो इंतकाल कर गई हैं, शहीद हो गई हैं। बड़ा मुझे दुख हुआ। मैं उन लोगों के पास वहां पर बैठ गया, बाकी लीडरों के पास, और कुछ देर बैठा रहा। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, जो बयान नहीं किया जा सकता। मैं नीचे आ गया। नीचे पीपल्स पार्टी के काफी कारकुन मौजूद थे। मुझे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुझे जो है वो वहां पर मेरे इर्द गिर्द सब जमा हो गए, रो रहे थे, चीख व पुकार कर रहे थे। कहने लगे नवाज शरीफ साहब, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपकी हुकूमत बनी, आप इक़्तिदार में आए, आपने हुकूमत कायम की, बस हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मोहतरमा के कातलों को आपने गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। हमने ये आवाज हर वक्त उठाई है, बार बार हुकूमत को एहसास दिलवाया है। भाई मोहतरमा आखिरी दिनों में नहीं, आखिरी चंद सालों में मेरा और मोहतरमा का बहुत एक अच्छा ताल्लुक था, जो कि एक सिर्फ सियासी कायदीन के हवाले से नहीं। वो मेरी बहन थी, मैं उनका भाई हूं, और आज भी मैं अपने आप को उनका भाई समझता हूं, उनको अपनी बहन समझता हूं। और मैं ये समझता हूं कितनी ज्यादती। 4 साल हो गए, 4 साल, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। जो हुकूमत उनके कातलों को नहीं पकड़ सकी, वो यहां चोरों और डाकुओं को क्या पकड़ेगी? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, देखें, ये पार्टी है जिसकी वो चेयरपर्सन थी, जिसकी वो चीफ थी, जिसकी वो सरबराह थी, पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। भाई सबसे पहला काम, बाकी सारे काम छोड़कर आपकी पहली ड्यूटी ये होनी चाहिए थी कि आप मोहतरमा के जो कातिल उनको गिरफ्तार करते, कौम के सामने लाते, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाते। ये आपका अवलीन फर्ज था जो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन एक बात इंशाअल्लाह, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सबसे पहले हम यही काम करेंगे, बाकी कामों से पहले ये काम करेंगे और कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम
उनके कातलों तक पहुंचे। इतना अच्छा गुजर चुका है, अगर ये ताज़ा काम कर दिया जाता तो बहुत कामयाबी हो सकती थी, लेकिन अफसोस है कि ऐसा ना हो सका। इतने सालों के बाद भी, गुजर जाने के बाद भी हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं इंशाल्लाह अपना फर्ज निभाऊंगा, एक भाई की हैसियत से फर्ज निभाऊंगा। आप जानते हैं बाज ऐसे वजीर और मशीर हैं, सुने, आप जानते हैं बाज वजीर और मशीर हैं जिनका दूर दूर तक पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं था। मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोलता हूं? दूर दूर तक मोहतरमा से भी कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन मेरी भाई नहीं बच्चे, अभी आज इस जलसे के बाद मैं जाऊंगा मोहतरमा की कब्र पे जा रहा हूं, वहां जाके कब्र पे जा रहा हूं और उनके लिए दुआ करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे सिंध के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुझे नहीं मालूम कि ये वही पीपल्स पार्टी है जो मोहतरमा छोड़ गई थी या कोई और पीपल्स पार्टी है। मुझे मोहतरमा की असली पीपल्स पार्टी मैं सोच रहा हूं कि वो कहां है। आज सिंध के अंदर सिंधियों की ये हालत क्यों है? आज सिंध के अंदर तरक्की क्यों नहीं आई? सिंधियों की हालत क्यों नहीं बदली? यहां पे पिछले साल सैलाब आया और इस दफा बारिशों का सैलाब आया, और मैं पिछले कई महीने से सिंध आ रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं। और मैंने अपने सिंधी भाइयों से वादा किया था, मैं कि सिंधी भाइयों, जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं हो जाते, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आपके पास आता रहेगा। और सैलाबों में मैंने जो हालत देखी है अपने सिंधी भाइयों की, सिंधी भाइयों और बहनों की जो मैंने हालत देखी है सैलाबों में, मैं वो अपनी आंखों से बयान नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों सिंधियों को जो है वो किसके हवाले कर दिया है, किसके सहारे छोड़ दिया है। एक हुकूमत है यहां पर, इस हुकूमत का फर्ज था कि सिंधियों को इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी होती। उसका फर्ज था कि सिंधियों को इस मुश्किल वक्त में उनको 2 वक्त की रोटी पहुंचाती। इनका फर्ज था कि उनको वहां पे कैंप पहुंचाते। इनका फर्ज था कि उनके बच्चों की देखभाल करते। और मैंने तो, आपको याद होगा कि मैंने पिछले साल जब सैलाब आए थे तो मैं वजीर आज़म के पास गया था कि हम मिलकर इन सैलाब ज़दा लोगों की मदद करें। वो ना हुआ, अफसोस है कि वो ना हुआ। उन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अपना वो वादा पूरा नहीं कर सके। उसके बाद मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपया फी खानदान उनको दिया जाए जो सिंधी सैलाब की नजर हो गए हैं। 1-1 लाख रुपया दिया जाए ताकि अपने घरों को दोबारा बना सकें, अपने घरों को दोबारा तामीर कर सकें। ऐसा नहीं हुआ। और आप जानते हैं, यहां पे तो आप इस इलाके के लोगों को पता नहीं ज्यादा मालूम हो या ना हो, लेकिन उन लोगों को जाके पूछें कि उन लोगों को पिछले साल का 20,000 मिला हुआ है, उसके बाद उसका कुछ नहीं उनको दिया गया। और उसके बाद इस दफा जो 10-10 हजार रुपया दिया गया है वो भी अभी 8 लाख लोगों को मिला है। अभी 6-7 लोगों को मिलना रहता है बाकी। अभी बारिशों का पानी जो है अभी तक जमीनों पे खड़ा है, कई जगहों पे मौजूद है, लेकिन उनको दोबारा आबाद करने के लिए अभी तक उनको पैसा नहीं मिल सका। ये कितने अफसोस की बात है। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा बार सिंध से। मैंने शहबाज शरीफ से बात की, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पंजाब से बात की। मैंने कहा सिंध के अंदर ये हालात हैं। अपनी पार्टी के लीडरों से बात की कि सिंध के अंदर ये हालात हैं। मुस्लिम लीग के तमाम लीडर साहिबान और शहबाज शरीफ साहब, सिंध के अंदर अगर हुकूमत उनका ख्याल नहीं करती तो पंजाब को उनका ख्याल करना होगा।
पंजाब को उनकी तमाम इमदाद पहुंचानी होगी। और शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि यहाँ पर हर किस्म का सामान भेजे, हर किस्म का आप यहाँ पे उनकी जरूरियात को पूरा करें। शहबाज साहब ने 860 ट्रक पंजाब से यहाँ भेजे, 800 जो कि तकरीबन 62 करोड़ रुपए का सामान शहबाज साहब ने भेजा है। ये कोई एहसान नहीं किया, ये एहसान नहीं है, ये भाई हमारा फर्ज है। पंजाब भी सिंध का भाई है, सिंध पंजाब का भाई है, बलोचिस्तान और उसके बाद खैबर सूबा जो है सब एक दूसरे के भाई हैं। आजाद कश्मीर भाई है, बल्तिस्तान भाई है, हम जो है सब एक हैं, एक। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह के फजल करम से हम पाकिस्तान को एक बनाएंगे। जो तरक्की पंजाब में होती है वो सिंध में भी होगी, सिंध में होती है वो खैबर में भी होगी, बलोचिस्तान में भी होगी और बाकी 2 सूबों में भी होगी। आजाद कश्मीर में होगी जो सूबा नहीं है, बल्तिस्तान में भी होगी। और मेरे भाइयों आप देखें आजकल हालात क्या हैं, आजकल क्या हालात हैं। एक सैलाब आए हुए हैं, दूसरा यहां पर जो है वो खाद का कितना रेट बढ़ गया है। खाद का रेट बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया? हमारे जमाने में 500-600 रुपया होती थी बोरी, आजकल क्या भाव है, क्या भाव है? ऊंचा बोलो। 2000 जो 2000 समझते वो हाथ खड़ा करें, जो समझते कि 2000 से ज्यादा है वो हाथ खड़ा करें। तो 2000 से ज्यादा वाले 4000 तो ये, और हमारे में 500-600। ऊपर से बिजली नहीं आती, बिजली आती है या नहीं आती? यकीन करें, यकीन करें अगर हुकूमत सही काम करती होती, आज 4 साल हो गए हैं, 70-75% लोड शेडिंग खत्म हो चुकी होती। यानी बिजली तकरीबन हर चौथे घर में आ रही होती, और बिजली की लोड शेडिंग ना होती, 75% मसला ये हल हो चुका होता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया, हम जान लड़ा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की दिन रात खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये वोट लग जाना हमें नहीं आता, और अल्लाह के फल से हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि आजकल यहां कितना लाकानूनियत है, चोरी है, डाका है या नहीं है, लोगों को अगवा कर दिया जाता है, यहां पे सबको अगवा किया जाता है, हिंदू अगवा होते हैं, डॉक्टर अगवा होते हैं। भाई ये क्या मुल्क चल रहा है, ये कैसा मुल्क चल रहा है? क्या ये मुल्क ऐसे चल सकता है? इस मुल्क को ऐसे नहीं चलना चाहिए। हम ये सब कुछ तब्दील करेंगे। और आप जानते हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो सिंध के अंदर डाकुओं को खत्म कर दिया था, 3 महीनों में डाकुओं का नामो निशान मिटा दिया गया था। आपको याद है या नहीं याद है? इंशाअल्लाह अगर अब अल्लाह ने मौका दिया, हम फिर डाकुओं को खत्म करेंगे, इन अगवा बुराए तावान को खत्म करेंगे, हम अपना इन तमाम डाकू राज को खत्म करेंगे। मेरे भाइयों हम समझते हैं कि ये इसके बगैर इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये क्या है? रेलवे, बिल्कुल सही कह रहे, रेलवे बंद है, PIA बंद हो रहा है और पाकिस्तान के इदारे बंद हो रहे हैं। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। मेरे भाइयों आपको मैं ये तब्दीली देख रहा हूं, आजकल सिंध में तब्दीली देख रहा हूं, और मुझे नहीं मालूम था सरफराज साहब, मुझे नहीं मालूम था हमीर साहब कि सिंध के अंदर और खास तौर पे लाड़काना में ये जज्बा पैदा हो गया है, ये जज्बा पैदा हो गया है। और ये हालात अगर बेनजीर
میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مل کر چلیں گے اور ایک نیا پاکستان بنائیں گے. یہ معاہدہ کیا تھا میثاق جمہوریت پہ. ایک طرف محترمہ نے دستخط کیے تھے, دوسری طرف میں نے دستخط کیے تھے. اگر اس میثاق کے اوپر یہ قائم رہتے, خدا کی قسم آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. آج ہم مل کر پاکستان کی تعمیر کر رہے ہوتے. آج مل کر حالات کا مقابلہ کر رہے ہوتے. آج مل کر پاکستان کی ترقی کر رہے ہوتے. آج مل کر ان غریبوں کی حالت بہتر بنا رہے ہوتے. یہ بچے اسکول جا رہے ہوتے. یہ بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے. ان بچوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوتی. ان بچوں کے ہاتھوں میں اچھی نوکریاں ہوتی. یہ بچے پاکستان کا ایک بہتر مستقبل بن رہے ہوتے, اس کی ضمانت بن رہے ہوتے. لیکن بچوں گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں. میں نے فیصل آباد میں بھی اعلان کیا ہے, فیصل آباد میں بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں, جس جس کے پاس کوئی ہنر ہے, جس جس کے پاس کوئی ڈگری ہے, جس جس کے پاس کوئی تجربہ ہے, وہ ابھی سے تیاری کرے, ابھی سے تیاری کرے. ہم انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ آسان شرائط پہ قرضے دیں گے تاکہ یہ اپنا کارخانہ بنائیں, اپنی دکان کھولیں یا اپنے لیے کوئی انتظام کریں. سب تیاری کرو, وہ وقت آنے والا انشاءاللہ. ہم ان لوگوں کے لیے راہیں کھولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ان کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ ہم راستے بنائیں گے تاکہ یہ خوشحال پاکستانی بن سکے. ہماری جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, وہ تیاری کریں اور اس کے لیے انشاءاللہ ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی اور ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی. میں تو آج کوئی اپنی جو ہماری کارکردگی تھی اس کو گنوانے کے لیے نہیں آیا. ایک زمانہ تھا خوشحالی تھی, خوشحالی. ایک زمانہ تھا کہ سندھ کے گوٹ میں یلو کیب چل رہی تھی. ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں میں؟ ایک زمانہ تھا سندھ کے ہاریوں کو, بے زمین ہاریوں کو زمینیں مل رہی تھی. ابھی بھی ان کے مجھے جب بچوں کے خط آتے ہیں, ان کے خط مجھے آتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سندھ کے ہاری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں, آئندہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو باقی زمینیں بھی انشاءاللہ ان بے زمین ہاریوں میں تقسیم کریں گے. میرے بھائیوں, میں تو ایک منٹ بھائی, ہم نے تو, اور میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, میں کسی کا ذاتی مخالف نہیں ہوں. میں اپنے ملک کا دوست ہوں, یہاں کے رہنے والوں کا دوست ہوں, اور یہاں کے جو پاکستان کے اندر مثبت سوچ رکھنے والے تمام سیاستدانوں کا میں دوست ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اور صرف, یہ دیکھیے میں نے ابھی جو آپ سے بات کہی ہے, میں سب کا ویل وشر ہوں. آپ پاکستان کو آگے بڑھاؤ, ان غریبوں یتیموں کے مسائل حل کرو, ان کی غربت کو دور کرو, ملک سے مہنگائی کی کمر توڑو, مہنگائی کو ختم کرو, غریبی کو ختم کرو, پاکستان کو ترقی کی راہ میں ڈالو. مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, میرا لیے یہی سب سے بڑا اقتدار ہے. میرا اقتدار یہی ہے کہ پاکستان کی قوم خوشحال ہو جائے, پاکستان کے لوگ اپنی منزل کی طرف پہنچیں. یہ میرا اقتدار ہے. اور میں اسی لیے بغیر شرط کے میں نے زرداری صاحب کی بھی ان کی پوری مدد کی, جتنی ہو سکتی تھی مدد کی. اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, ہم نے اپنی راہیں پھر ان کے ساتھ جدا کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوجوان لوگ اگر نواز شریف کا ساتھ دیں, نواز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں, قدم سے قدم ملائیں, ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہم پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا سکتے ہیں. ہر لحاظ سے
हर फ्रंट पर पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैंने मेमो गेट की बात करनी थी लेकिन बात लंबी हो जाएगी। मैंने अभी बाहर के साथ हमारे ताल्लुकात की बात करनी थी लेकिन मैं इंशाअल्लाह ये बातें किसी और वक्त करूंगा। जो पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सूरत हाल हमें दरपेश है, मैं आज सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह के फज़ल व करम से आपके साथ वादा है कि अगर आप हमें आइंदा अपने इस पाकिस्तान की खिदमत का मौका देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आपकी तकदीर अल्लाह बदलेगा। आपके घरों में इंशाअल्लाह रोशनी के चिराग जलेंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा, एक बाइज़्ज़त मुल्क बनेगा और इंशाअल्लाह हम सब इस पर फख्र करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, इस वक्त उन्होंने लाड़काना में जलसा आम से अपना खिताब मुकम्मल कर लिया और अब वो डाइस से हट गए हैं। उनके खिताब के चंद अहम निकात आपको बताते चले। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को ना पकड़ सकी, वो चोर डाकुओं को क्या पकड़ेगी। इससे पहले जब नवाज शरीफ मोइनजोदाड़ो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनका इस्तकबाल किया गया और इस जलसे के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में जो चंद ही लम्हे पहले ख़त्म हुए और वो स्टेज से उतर रहे हैं, जैसा कि आपने इन लाइव मनाजिर में अपनी स्क्रीन पर देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, उनका इक़्तिदार यही है कि पाकिस्तान के लोग अपनी मंजिल तक पहुँचें। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सिंध और लाड़काना में तब्दीली का जज्बा पैदा हो गया है और अगर PML नून की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो लोगों को आसान शराइत पर कारोबार करने के लिए कर्ज़े देंगे ताकि नौजवान मुस्तक़बिल में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। ये मनाजिर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाड़काना में मुस्लिम लीग नून के मुनक़दा जलसे के हैं, जहां अभी कुछ ही देर पहले मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने अपना खिताब मुकम्मल किया। इस मौके पर जलसागाह के इर्द गिर्द फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है और जब नवाज शरीफ मोइनजोदाड़ो एयरपोर्ट पर आज सुबह पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गौस अली शाह, परवेज रशीद, इलाही बख्श शोमरो, जावेद हाशमी, एहसन इकबाल, ये वो चंद लीडरान हैं मुस्लिम लीग नून के जो इस जलसे में शिरकत करने मियां नवाज शरीफ के साथ लाड़काना गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कुछ ही देर पहले ये भी कहा कि बेनज़ीर की लाश छोड़कर भागने वाले आज वज़ीर बन चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनका दिल गढ़ी खुदा बख्श भी जाता है, जहां नवाज शरीफ के मुताबिक उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो दफन है। पाकिस्तान बदल रहा है, लाड़काना बदल रहा है। इस वक्त हम बात करते हैं ब्यूरो चीफ सखर एक्सप्रेस न्यूज़ लियाकत लगारी से और उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी लियाकत, ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ साहब ने कुछ ही लम्हे पहले अपना खिताब मुकम्मल कर लिया, अब जलसे में क्या प्रोग्राम बाकी है? अवकाश जिस तरह का जलसा हुआ है मियां नवाज शरीफ का, अनएक्सपेक्टेड यानी कि एक सूरत हाल पैदा हुई है लाड़काना के लिहाज से, खास तौर पर क्योंकि यहाँ पर तस्वुर नहीं किया जाता था कि पीपुल्स पार्टी की माजी में सबसे बड़ी राइवल जमायत जो है वो इतना बड़ा जलसा कर सकेगी। वो कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये एक इतना बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन लाड़काना के हिसाब से यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत करके हमें जो है खुद ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। और इस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ ने अपना जो है खिताब पूरा किया है। उन्होंने खास तौर पर अपनी स्पीच में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बार बार जिस तरह से जिक्र जी, उन्होंने बार बार जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो गड़ी खुदा बख्श जाएंगे। लियाकत, ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ साहब की अगली मसरूफियात क्या होंगी? अब उनकी अगली मसरूफियात मेजर मुजाहिद मीरानी के घर पर भी जाएंगे जो हाल ही में नेटो हमले में शहीद हुए थे। उसके बाद जो है वो गड़ी खुदा बख्श जाएंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी भी देंगे। जी वक़्त जी, और इस मौके पर लाड़काना और वो गड़ी खुदा बख्श भी जाएंगे, आपने बताया मेजर मुजाहिद मीरानी के घर पर भी जाएंगे, तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात आपको नजर आ रहे हैं लियाकत? वकालत से इतनी बड़ी सिक्योरिटी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके जो है ना पर्सनल गार्ड्स भी हैं और पुलिस भी नजर आ रही है। अब जो है गड़ी खुदा बख्श में जा रहे हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी काफी तादाद में पुलिस स्क्वाड दिया गया है इनको।
मजीद जो है जैसे जैसे सूरत हाल सामने आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। और ये बताते चलिए हमें लियाकत के जहाँ पर ये जलसा मुनक्किद हुआ है वहाँ से गड़ी खुदाबख्श तक का कितना रास्ता है, और क्या गड़ी खुदाबख्श जाने से पहले नवाज शरीफ मेजर मुजाहिद मीरानी शहीद के घर पर जाएंगे? जी बिल्कुल, वक़ा से जो है सूरत हाल मुख्तलिफ वक्तों में तब्दील होती रही है। हमें पहले बताया गया था कि वो डायरेक्ट जो है सीधे जाएंगे मुजाहिद मीरानी के मेजर के घर पर, लेकिन बाद में वो सीधे चले आए एयरपोर्ट से जलसे में। तो इस वक्त जो है सूरत हाल यही बताई जा रही है कि वो सीधे पहले जाएंगे मेजर मुजाहिद मीरानी शहीद के घर पर, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। उसके बाद जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर जाएंगे और दुआ फातिहा करेंगे। उसके बाद इनकी रवानगी सखर एयरपोर्ट के जरिए होगी, यानी कि वो उनका लैंड जो हुआ था यहाँ पर मोहनजोदड़ो। लियाकत लगारी, ब्यूरो चीफ, एक्सप्रेस न्यूज़ सखर, इस अपडेट का बहुत शुक्रिया। और अब हमारे आने वाले बुलेटिन, आज तक उनके कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका। ये भी पता नहीं है कि उनके कातिल कौन हैं, और आज तक उनके कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। हुकूमत का आज ये हाल इसलिए है, ये दिन इसलिए हुकूमत को देखना पड़ रहा है कि वो लोग आज हुकूमत के वजीर हैं जो मोहतरमा की लाश पड़ी हुई देखकर छोड़कर भाग गए। इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सबसे पहले हम यही काम करेंगे, बाकी कामों से पहले ये काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके कातिलों तक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के लाड़काना में जलसे से खिताब पर बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज सखर के ब्यूरो चीफ लियाकत लगारी से। लियाकत, आज के जलसे के बाद क्या मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को चैलेंज देगी, क्या लगता है आपको? जी, जिस तरह का आज जलसा हुआ है, एक कामयाब जलसा हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि लाड़काना के हवाले से यही मशहूर था कि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यही तस्वुर किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह का जलसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ मैं कि यहाँ की लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी, यानी कि लोकल लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा थे, बाहर से कम लोग लाए गए थे। लोकलिटी के हिसाब से पीपल्स पार्टी की यानी कि एक तस्वुर किया जाता है कि कोई और यहाँ पर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकता। तो ये एक बारिश का पहला कतरा कह सकते हैं। जिस तरह से अभी छोटे छोटे इज्तिमाआत को भी नवाज शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अवकाश में खिताब किया है, लेकिन आज जिस तरह लाड़काना के हिसाब से बहुत बड़ा जलसा किया है, तो आइंदा इलेक्शन में जिस तरह से आज जो यहाँ के लोकल लोग थे, जिस तरह की बेजारगी दिखाई गई है, तो यही फील अगर जो मियां नवाज शरीफ अगर अपनी कैंपेन को जारी रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। जी, लेकिन सियासी तौर पर क्या अहमियत देख रहे हैं आप इस जलसे की? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि एक मार्का था मियां नवाज शरीफ के लिए। आम लोगों में ये तस्वुर था कि मियां नवाज शरीफ शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा ना कर सके। लाड़काना एक तस्वुर होता है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, तो एक तस्वुर था कि लाड़काना में शायद कम लोग आए इतनी तादाद में। लियाकत, नून लीग ने पहले लाहौर में जलसा किया, फिर फैसलाबाद में जलसा किया, आज लाड़काना में जलसा किया है, सिंध तक आ पहुंची है नून लीग। तो क्या कहा जा सकता है इसको कि नून लीग एक प्रॉपर तौर पर इलेक्शन कैंपेन मोड में आ चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच में भी यही जिक्र किया, बार बार उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया और उन्होंने वादा किया कि जो है जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो उनके कातिलों को भी बेनकाब करेंगे और जो है उनको सजा दिलाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में अगर अवाम उनको मुंतखब करती है और इक़्तिदार में आते हैं तो वो जो है अपने उन्होंने काफ़ी वादे किए कि जो है वो पूरे करेंगे। जी लियाकत, इसी महीने 25 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसा करना है कराची में। तो आप ये कह सकते हैं कि पंजाब में वो सियासी माहौल, वो इस हवाले से हम आपसे अपडेट करेंगे, आपसे अपडेट्स लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया वहाब, उनसे बात करते हैं। फौजिया वहाब साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को 3.5 साल गुजरने के बावजूद जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये हुकूमत चोर डाकुओं को क्या पकड़ेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं सिर्फ अफसोस का इजहार करूंगी और मैं उनको याद दहानी कराना चाहती हूँ। उन्होंने ये दावा किया कि मैं उनका भाई हूँ। अगर वो उनके भाई होते
تو جو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہوتے اس کی وہ پاسداری کرتے اور ان وعدوں کو نبھاتے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ یہاں آئے تھے پاکستان، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے آئے تھے، اور ان کے لیے جو رستہ کھولا گیا تھا وہ محترمہ کی وجہ سے کھولا گیا۔ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے یہاں کا ماحول دیکھ کے جس طریقے سے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ جی ہم بوائیکاٹ کریں گے بوائیکاٹ کریں گے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے۔ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی جنہوں نے ان کو راضی کیا اور کہا کہ آپ بوائیکاٹ بند کریں اور آپ الیکشن پروسیس میں آئیں تاکہ ہم جمہوریت کو مضبوط کر سکیں۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ معاہدہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کو وائلیٹ کرنے والے سب سے بڑے کون ہیں؟ وہ میاں نواز شریف خود ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب ہم کسی غیر سیاسی قوت کے ہاتھوں نہیں کھیلیں گے اور کسی غیر سیاسی قوت کو ہم اپنے اوپر۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، بے نظیر بھٹو کی میت کو چھوڑ کر جانے والے آج وزیر بن گئے، یہ بھی کہنا تھا ان کا آج اس جلسے کے دوران، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو لازی وہ کر رہے ہیں، کس نے چھوڑا کس کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کریں، میرے خیال میں بہتر ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے سی او ڈی کی وائلیشن کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہو، یہاں پر ہر طریقے سے ان کے لیے ہم نے ان کے ساتھ مفاہمت کی، ہر طرح کی بات پر عمل کیا، لیکن وعدہ سے انحراف کرنا میرے خیال میں میاں نواز شریف کی عادت ہے۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، ان کا یہی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی ناکام رہی ہے اس حوالے سے، اور وہ بحیثیت بھائی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اللہ کرے وہ آئیں اور وہ اس کو پورا کر سکیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہ کے ان کی سوچ جو ہے وہ اتنی عامیانہ ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کو عام کا کوئی قتل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محلے میں کسی کا قتل ہوا ہے یا کسی نیک پروین کا قتل ہوا ہے، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہوا تھا، یہ کسی ایک آدمی کی حرکت نہیں تھی، یہ کسی دو آدمی کی نہیں تھی، اس میں تو کئی قوتیں انوالو تھیں۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ جب ان کے سامنے یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ آ گئی ہے اس کے بعد ان کو اس بنیاد پر سیاست نہیں کھیلنا چاہیے۔ بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحب آپ کا۔ اور آج بھی میں ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سندھ کے وزیر قانون ایاز سومرو کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے 4 مہینے سے بجلی کے بل کی مد میں 3,70,000 روپے ادا نہیں کیے تھے اور اب ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سندھ کے وزیر قانون ایاز سومرو جن کے گھر کی بجلی کاٹے گی، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 4 ماہ سے انہوں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تھا، اور جو مالیت بتائی جا رہی ہے اور جو رقم بتائی جا رہی ہے وہ ہے 3,70,000 روپے، جو کہ بجلی کی مد میں ہیں، بجلی کے بل کی مد میں ہیں۔ ترجمان کے ESC کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں ان کا جو 4 ماہ سے جو ان کا گھر ہے وہاں کی بجلی ادا نہیں کی گئی تھی، 4 مہینے سے 3,70,000 روپے ادا نہیں کیے گئے تھے، اور اسی وجہ سے ایاز سومرو کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے ایاز سومرو جو کہ لاڑکانہ کے جلسے کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں، انہی کے گھر کی بجلی اب سے کچھ دیر پہلے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کاٹ دی گئی ہے۔ 4 ماہ سے بجلی کا بل نہ ادا کرنے پر ان کے گھر کی بجلی کاٹی گئی ہے۔ وزیر قانون ہے سندھ سے ایاز سومرو جن کے گھر کی بجلی کاٹی گئی ہے، اور ترجمان کے ESC نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایاز سومرو کے گھر کی بجلی کاٹی گئی ہے اور اس کی وجہ 4 ماہ سے بل ادا نہ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر کے قاتلوں کو نہ پکڑنے والی حکومت لٹیروں کو کیا پکڑے گی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی میت چھوڑ کر بھاگنے والے آج وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ لاڑکانہ میں جلسہ عام سے خطاب انہوں نے کیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آج کل یہاں کتنا لاقانونیت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ سب کو اغوا کیا جاتا ہے، ہندو اغوا ہوتے ہیں، ڈاکٹر اغوا ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ملک چل رہا ہے، یہ کیسا ملک چل رہا ہے؟ کیا یہ ملک ایسے چل سکتا ہے؟ اس ملک کو ایسے نہیں چلنا چاہیے، ہم یہ سب کچھ تبدیل کریں گے۔